بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ملتان اسموک کی لپیٹ میں آ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر۔ موٹر وے M5 شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ اسموک کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1450 ریکارڈ کیا گیا۔ سانس لینا محال ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وسیم۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا تاحال پہلا نمبر ہے۔ اسموک کے تدارک کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے تمام تر دعوے ہوا ہو چکے ہیں۔ اس وقت شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1450 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ پاکستان بھر میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اور ایسی صورتحال میں سانس لینے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آنکھوں میں چبھن جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، ایسا کہنا ہے طبی ماہرین کا، اور ماسک کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن پھر بھی ہمیں شہر ملتان میں SOPs کی خلاف ورزی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ احکامات بھی جاری کیے گئے انتظامیہ کی جانب سے کہ 8 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں گی۔ ہم نے دیکھا کہ رات گئے کھلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو اسموک بڑھنے کے خدشات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ انتظامیہ نہ چمنیوں کو کور کر پائی ہے، نہ ہی بھٹوں کو ابھی تک کنٹرول کیا گیا، اور نہ ہی یہ میرے عقب میں چلتی ہوئی ہزاروں سینکڑوں گاڑیاں جو روڈ پر گزر رہی ہیں، ان سے اڑنے والا جو دھواں ہے وہ بھی اسموک کا باعث بن رہا ہے۔ اس کو بھی کنٹرول ابھی تک نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا جو پہلے سے شہری ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں وہ اس ٹائم اپنی جو لائف ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ نے جو پہلے دعوے کیے تھے 2-3 ماہ پہلے کہ ہم اسموک کے حوالے سے پہلے سے میٹنگ کمشنر DC کی جاری تھی، تو وہ کہاں، ان کے رزلٹ کیوں سامنے نظر نہیں آ رہے؟ اور اس وقت ملتان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کل پہلے نمبر پر رہا، اور آج پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ اور انتظامیہ کو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور شہریوں کی زندگیوں سے نہ کھیلے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائے۔ اور اسی اسموک کی وجہ سے میں بات کرتا چلوں موٹر وے کی، تو M5 جو ہے موٹر وے ملتان سے پنڈی تک وہ بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور کل 10 بجے کے بعد جو ہے وہ اسموک کو کے منظر شکریہ وسیم شہزاد۔ آپ بات کریں گے جنوبی پنجاب بھر میں اسموک کے ڈیرے، صورتحال سنگین ہونے لگی۔ حد نگاہ متاثر شہریوں کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شہر اولیا میں اسموک کا راج برقرار۔ ملتان آج بھی دنیا کا فضائی آلودہ ترین شہر قرار۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1186 پوائنٹس ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہر بھی اسموک کی زد میں ہیں۔ مظفر گڑھ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 279، خانیوال 277، DG خان 264، لیا 262، بہاولپور 261، سرگودا 244، راجن پور 236، رحیم یاسان 220 اور میاں والی کا 214 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ بٹے، نکارہ گاڑیاں اور انڈسٹریل یونٹس کا دھواں اسموک کی بڑی وجہ ہیں۔ فضا زہر آلود ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بیماریوں کا سامنا رہنے لگا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان محمد سیف کا کہنا تھا کہ سیکرٹری RTA نے 250 گاڑیوں کو جرمانے کیے اور درجنوں کو بند کیا ہے۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے 27 بھٹے مسمار کر دیے۔ سکولز بند ہیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے اسموک کے مد نظر ایئر کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اس وقت تمام بھٹا جات کو بند کر دیا ہے، اور ہم ان کو صرف تب چلانے کی اجازت دیں گے جب وہ زگ زیگ پہ ہوں گے، اور اگر زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہوئے تو ہم انہیں ڈیمولش کر دیں گے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو آلودہ فضا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فضائی آلودگی کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ماہر عمران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت۔ شہر اولے کی فضا دنیا بھر میں آلودہ ترین قرار۔ پروگرام بنام سرکار میں عوام نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ سرکار کی غفلت اور مبینہ نااہلی کے باعث ملتان شہر کی فیکٹریاں اور اینٹوں کے بھٹے زہر اگلنے لگے۔ زہریلا دھواں فضا میں چھوڑنے کے باعث ملتان شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ پروگرام بنام سرکار میں بستی وزیر آباد کے مکینوں نے محکمہ ماحولیات اور ضلع انتظامیہ کو کھری کھری سنا دی۔ شہری کہتے ہیں کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا ویسٹ ہمارے سانس کے ساتھ اندر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انتظامیہ فوری طور پر فیکٹریوں کو بند کرائے۔ عوام مر رہی ہے، جو مرضی کر رہی ہے۔ اب آلودگی اتنی پھیل گئی ہے کہ رات کا بچوں کا
सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चे इस वक्त मतलब कि अस्पताल में ना हो। जो पीछे सार स्मोक नजर आ रहा है ना, वो फैक्ट्री वाले जिम्मेवार हैं, हम नहीं है जिम्मेवार। हमारे बच्चे हैं इधर 3-4 हजार यानी तादाद है अवाम की, एक घर नहीं, 2 घर नहीं, या 4 घर नहीं है इधर 3-4 हजार घर है, उनके बच्चे हैं, उधर स्कूल है, इधर मदरस है। वो बैलर चलाते हैं, तो जो सूखी हुई राख वगैरह सारी हमारे घरों के छतों के ऊपर बच्चों में सारा असरअंदाज हो रही है। वो खाल बिनौला यानी कि ये राइस वगैरह की धुलाई, ये एक सारा काम है, कई प्लांट है उनके पास। स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ तो हुकूमत को फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां याद आ गईं। प्रोग्राम बनाम सरकार ने तवज्जो दिलाई तो महकमा माहौलियात को भी होश आ गया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इमरान का कहना था कि महकमा माहौलियात के पास वसाइल की कमी है, इसके बावजूद जहरीला धुआं उगलने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। फैक्ट्रियां जिन्होंने आलूदी कंट्रोल करने वाले डिवाइस नहीं लगाए, हम उससे सील कर रहे हैं और इस सीजन में और या नेक्स्ट इन आलात के बगैर चलने नहीं देंगे। और दूसरा हमारा जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है, जो नॉन जिगजैग भट्टे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी पर हैं, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। आप देख भी रहे हैं ये ऑपरेशन जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आखिरी भट्टा जो यहाँ पर लोकल पुरानी टेक्नोलॉजी पर है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे तब्दील नहीं हो जाता। खतरात भरे वक्त से पहले हिकमत अमली तैयार करना हुकूमती मशीनरी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, जबकि हुकूमत उस वक्त जागती है जब कोई वक़्वा पेश आ गया हो। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रूही, मुल्तान शहर की फजा स्मोक के बायस संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच गया। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से स्मोक का तदारुक करने के लिए हंगामी इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। शहर औलिया में फजाई आलूदगी की तमाम हदें पार। मुल्तान एयर क्वालिटी में 1186 पॉइंट्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहरियों के इदारों के लिए रोही से खसूसी फरियाद, कहते हैं मुल्तान में इंडस्ट्री और ईंटों के भट्टों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। हुकूमत और जिला इंतजामिया स्मोक की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। हमारा सांस लेना मुश्किल हो चुका है। सर स्मोक तो वाकई बहुत ज्यादा और इस टाइम सड़कों पे निकलना भी मुहाल हो चुका है। बच्चों को स्कूल जाना, चलो शुक्र है बच्चों की स्कूल से छुट्टियां, लेकिन जाहिर बात है ऑफिस तो जाना ही होता है। तो स्मोक से बचने के लिए हमने मास्क वगैरह भी लगाए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाहर निकलते हैं तो आंखों में चुभन और मोटरसाइकिल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सांस में दुश्वारी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए ये इक़दाम करे, ये कोई मसला हल करे, ये बड़ा मसला है। शहरियों का कहना था कि लाहौर की तरह मुल्तान में भी मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाए ताकि स्मोक की शिद्दत में कमी आ सके। जिला इंतजामिया सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाए। सुबह से काम पे निकले हुए हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से खांसी भी हो रही है और आंखों में जलन भी हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई इकदाम करे। हुकूमत को चाहिए कि ज़रूरी इकदाम उठाएं, कोई नेसेसरी प्रिकॉशंस जो हैं उनको फौरी अमल में लाएं, शहरियों को थोड़ा समझाएं। ये जो अब आप बाहर जो माहौल देख रहे हैं ये देख के तो नहीं लगता कि हमें जो है आवाम थोड़ा कर रही है इस पे, लेकिन ये आवाम के लिए बहुत खतरनाक है। हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरह स्मार्ट लॉकडाउन का फौरी नफाज करे ताकि स्मोक पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान ट्रैफिक पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए इन एक्शन। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सैयदावाला बाईपास पर स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक का तदारुक करने के लिए मैदान में आ गई। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने सैयदावाला बाईपास पर चेकिंग की और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने किए, जबकि दर्जनों गाड़ियों को बंद भी कर दिया गया। जो गाड़ियां भी मैकेनिकली अनफिट हैं, जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, खुदारा उनको ठीक करवाएं। उनका जो सिस्टम है धुएं वाला वो ठीक करवाएं। आप देख रहे हैं कि मुल्तान की जो सूरत हाल है स्मोक के हवाले से वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में सबसे अबतर है। इस सिलसिले में हम जो धुआं छोड़ रही गाड़ियां उनको न सिर्फ चालान कर रहे हैं, उनको गाड़ियों को बंद भी कर रहे हैं, उन पे FIRs भी दे रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि स्मोक खतरनाक बीमारी है, इससे बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस का ये ऐसा इकदाम है। हमारी गाड़ी धुआं मार रही थी, इसलिए 2000 का चालान हो गया है, वो हम वर्कशॉप में लेकर जा रहे हैं उसका वो बंद कराने के लिए। चलान किधर ड्राइवर का लिया 2000 का, बस बिस्तरी को जा रहे हैं, धुआं खत्म कराना है।
अभी जा रहे हैं धुएं के लिए जी। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चेकिंग करके 2000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। 24 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माना किया गया, जबकि 30 से ज्यादा गाड़ियों को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक स्मोक के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रूही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी का राज बरकरार। स्मोक के बायस निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी परेशान। स्मोक में शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। बहावलपुर, मियावाली, फोर्डाबाद, रहीम यार खान में स्मोक के बढ़ते हुए खतरात। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया। डॉक्टर नोमान का कहना था कि काउंटर पर तिब्बी अमला 24 घंटे मौजूद होगा। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। मियावाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना है कि स्मोक के बायस मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं। स्मोक से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। जतोई, सादिकाबाद, छपकला और खैरपुर टामेवाली को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बच्चे और सांस के मरीज घरों में रहें। खैरपुर टामेवाली में भट्टा मालिका ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। पाबंदी के बावजूद मुतअद्दिद भट्टे फाल हैं। भट्टों पर शॉपिंग बैग्स, कूड़ा करकट और जानवरों के फजलात को जलाया जा रहा है। दुनियापुर, डहरावाला, तुलंबा, तुरंडा मोहम्मद पनाह और उच्च शरीफ में स्मोक का राज बरकरार। डहरावाला में छुट्टियों के बावजूद स्कूल खुले हैं। तुरंडा मोहम्मद पनाह में स्मोक के बायस मोटरवे M5 को बंद कर दिया गया। उच्च शरीफ में स्मोक के नुकसानात से बेखबर शहरी बगैर मास्क पहने अपने कामों में मसरूफ हैं। मुजफ्फरगढ़ में 9वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर। स्टॉक कैटेगरी राउंड में 53 जीप रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्मोक की वजह से 195 किलोमीटर के ट्रैक को 105 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबलों का इनकाद। आज की रेस में 48 मर्द और 5 खवातीन रेसर ने हिस्सा लिया। ट्रैक पर सबसे पहले सैयद आसिफ इमाम की गाड़ी रवाना हुई। ट्रैक पर स्मोक की वजह से TDCP को 195 किलोमीटर का ट्रैक शॉर्ट करके 105 किलोमीटर तक महदूद करना पड़ा। थल जीप रैली को देखने के लिए मुजफ्फरगढ़, कोट अदू और करीबी अजला से शायकीन की बड़ी तादाद छांगा मांगा टीले पर पहुंची। शायकीन की दिलचस्पी के लिए कबड्डी मैच और बग्गी बाइक रेस का भी इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुल ऐन मेमन भी थल जीप रैली देखने पहुंची। इस मौका पर इनका कहना था कि इवेंट को बेहतरीन कवरेज पर मीडिया की शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो मोहतरमा हमारी वज़ीर आला साहिबा मैडम मरियम नवाज, उनके विजन के मुताबिक एक हेल्दी तफरी माशाल्लाह तीनों अजला की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेस्क्यू, ज़ैली इदारे, बल्दियात सब ने मिलकर माशाल्लाह TDCP के हमरा इसको कामयाब बनाया। और आप सबसे दुआओं की इल्तिमास है कि कल तक इंशाल्लाह ताला बखैर व आफियत ये पुररौनक ऐसी तफरी जो सारी फैमिलीज के लिए ये कल्मिनेशन तक पहुंचे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बगी रेस के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया, जिस पर सबसे पहले नदीम खान की बगी रवाना हुई। रेस में 4 बगियों ने हिस्सा लिया। बगी रेस के हतमी नताइज का ऐलान 10 नवंबर को फैसल स्टेडियम में मुनक्कदा तकरीब में किया जाएगा। 850 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस अहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। थल जीप रैली में फाइनल राउंड के मुकाबले इतवार को होंगे। थल जीप रैली में एक तरफ फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां तो दूसरी जानिब ढोल की थाप पर इलाकाई झूमर और कबड्डी के मुकाबले। जीप रैली का तीसरा रोज रंग बिरंग मुनफरिद इवेंट्स के साथ मुकम्मल हो गया। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट थल जीप रैली का तीसरा रोज। रैली में स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों के माबैन रेस का खूब मुकाबला हुआ। छांगा मांगा टीला के स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रैक पर सबसे पहले आसिफ इमाम निकले, मगर फिनिशिंग पॉइंट पर हसन अली मगसी पहले पहुंच गए। उन्होंने फासला 1 घंटा 16 मिनट और 31 सेकंड में तय किया। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 4 वेटरन और 2 खवातीन रेसर्स लालीन अखमरजादा और अमरीन फराज ने भी हिस्सा लिया। तो मैं दूसरे रेसर्स को सबको ये कहूंगा कि सब विजिलेंट हो जाएं इसमें, बिल्कुल के इसमें कोई भी चांस नहीं है एरर का, क्योंकि विजिबिलिटी अगर नहीं है तो ये बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, बहुत ट्रैवर्स ट्रैक है, तो इसमें कोई चांस नहीं है एरर का। ट्रैक बहुत खराब हुआ है इस वक्त, बहुत ज्यादा गाड़ियां गुजरी, इसके से ट्रैक बहुत ज्यादा खराब हुआ है। हमें बहुत ज्यादा फॉग मिली है रास्ते में, प्लस कुछ गाड़ियां हमारे साथ आगे थी तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना हुआ है। ट्रैक जो है बहुत डिफिकल्ट था, मकसद बहुत ज्यादा उसके अंदर टर्न्स थे और इसमें गाड़ी फंसने का भी थोड़ा सा खदशा हो रहा था, लेकिन बस ये कि स्पीड में अब चलाइए। लास्ट में लोगों ने बहुत तंग किया है, बीच बीच में लोग बहुत डिट्रैक्ट कर रहे थे।
रेस के आखिरी मरहले में 40 किलोमीटर के ट्रैक पर 4 क्वाड बाइक्स के माबैन भी मुकाबला हुआ, जिनका फिनिशिंग पॉइंट खेड़ी का मुकाम था। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर आमिर डोगर और शफकत मलाना के हमरा इकबाल सादिक रोही, कोट अद्दू। शदीद स्मॉग और महदूद हद निगाह के बायस जीप रैली की रौनक के मुतासिर हजारों शायकीन सहराए थल में फराटे भरती गाड़ियों को देखने से महरूम रहे। मोटर स्पोर्ट्स का एक्शन से भरपूर इवेंट देखने के लिए जनूबी पंजाब भर से शायकीन सहराए थल में उमड़ आए। शायकीन की उम्मीदों पर इस वक्त ओस पड़ गई जब स्मोक की शिद्दत और महदूद हद निगाह के बाइस न सिर्फ रैली ताखीर का शिकार हुई बल्कि इसे सिर्फ 105 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। ड्राइवर्स ने मुश्किल ट्रैक पर अपनी महारत के खूब जौहर दिखाए। स्टॉक कैटेगरी में माहिर ड्राइवर फैसल इमाम को इनके वालिद के इंतकाल की खबर ट्रैक पर दौरान ड्राइविंग मिली। फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचते ही वो वहां मौजूद अपने भाई के गले लग गए। फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले रेसर शायकीन की तरफ से ट्रैक के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ से सख्त नालान नजर आए। रेसर्स का कहना था कि शायकीन अपने एडवेंचर के लिए ट्रैक पर रुकावटें खड़ी करके इनकी जान दांव पर लगा देते हैं। ट्रैक यार माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पिछले कई सालों से एक ट्रैक है, मगर कहीं ना कहीं कोई तब्दीली थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत कोई ना कोई तब्दीली होती है हर साल, क्योंकि फसलात काश्त हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से हमें करना पड़ता है। मगर ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत टफ ट्रैक है। ड्राइवरों का मकसद है कि सही मानों में टेस्ट है इससे। मैंने कल खुद भी तजुर्बा किया देखकर कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैक है, क्या है जो भी है, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। ट्रैक में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है और काफी हैंडलिंग है यहाँ पर। फिनिशिंग पॉइंट पर शायकीन ने रेसर्स का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर खूब रौनक रही। जीप रैली के नताइज मुरतब करने के लिए TDCP की तरफ से फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। फिनिशिंग पॉइंट पर शायकीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुसलसल मुतहर्रिक रही। कैमरामैन अरबाब के हमरा रोही टीम चौबारा। जंगल में मंगल का समा चौबारा के रेगुजारों में दूसरी म्यूजिकल नाइट, नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस शुरका का झूम उठे। चौबारा में नवी थल जीप रैली और मेले की रंगारंग तकरीबा। तीसरे दिन भी रेगजारों में मेले की रौनकों ने रंग बिखेरे। मेले में कैटल शो, मुशायरा और झूमर समेत दीगर सकाफती रंग पेश किए। दूसरी म्यूजिकल नाइट में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल मोह ली। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।